Welcome to Dr. Kiani's World, where you can learn all about drama and theatre. What is art? What is theater? Why is it important? That's like asking, what is life? Why are we here? Does it matter what we do with it? Theater, you see, is a mirror of our lives. Our struggles, Our pain, Our joys and our triumphs. Theater is this crazy person who has the courage. or the insanity. To show up naked. Sometimes literally. To stand in front of an audience and show their work and expose themselves. To say, what do you think? It's not that they're not scared. Of course they are. Terrified sometimes. But that's the price you have to pay to have the ability. The honor The immense pleasure. of touching perfect strangers. Of being moved to tears. To laugh and to marvel. To open hearts and minds. To open hearts and minds. In the end, this is why we do what we do. We all have busy lives. There's so much information, opinions, and confusion. It's hard not to feel lost, scared, and overwhelmed. How do we make sense of it all? How do we find ourselves and each other in all this noise? We're not here to tell you what to do or to lead you down the right path. We're in the same boat you are. we are here to tell you stories. Sometimes they're funny. Sometimes sad. Or both. But they are all glimpses of us. It's like peeking in someone's bedroom. We're reading their diary. These stories let us in, these very intimate Very personal. and very honest slices of life. Theater. Theater Theater. is where we see us, where we poke fun at ourselves, And laugh at our shortcomings. where we marvel at the human spirit. Where we start to see things from different perspectives. It's where we forget where we are for a couple of hours And get transported into stories that touch us, move us. Or simply delight us. These stories break barriers. Barriers of time, Backgrounds. And opinions. They help us make sense of what it means to be alive right now. And hopefully, they help us to find beauty and peace. Amongst all the noise and confusion. hopefully, Hopefully, hopefully. They'll help us find us. And each other. this is what we do. This is why we do it. This is who we are. फिजा कमाल से बात हो अस्सलाम वालेकुम सर। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। फिजा ये बताएं कि इससे पहले आपने ड्रामा पढ़ा है? सर ड्रामा हमने लिटरेरी फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स में उसकी इंट्रोडक्शन वगैरह पढ़ा था और हमने एक असाइनमेंट भी बनाई थी उसके ऊपर, लेकिन इन डिटेल हमने किसी राइटर का नहीं पढ़ा अभी तक। नहीं, तो ये तो बहुत अच्छा है कि आपको जो है ना वो पहला मौका मिल रहा है, क्योंकि जी जो ड्रामा की जो इन्फ्लुएंस है लिटरेचर के ऊपर वो बहुत ज़्यादा है। तो इंशाल्लाह ताला आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि ड्रामा पढ़ना क्यों ज़रूरी है और ड्रामा है क्या चीज़। ले जी, अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम साथियों। दिस इज़ डॉक्टर तैमूर कियानी and I'll be celebrating drama and theatre with you, and hopefully we'll cover the course outline within time, and then we'll go through the projects, because it's a practical field, and I would like all of you to participate in them. साथियों, सबसे पहले मैं अब आपको अपना तारुफ करा देता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर तैमूर कियानी है और I did my PhD in English literature from University Putra, Malaysia, with the specialization in drama and theatre. And I also write plays
currently one of my play is in the right now. It's already published. It's called No Exit, and I also work as a director for short films. I also did my MS in film and TV. So drama and theater is one of the most important thing for me in life. It's one of the most activity I do, and it will be a great honor for me to teach you drama and theater in a practical way. हम लोग क्या स्टडी करेंगे? हम स्टडी करेंगे कि कौन कौन सी अहम चीज़ें हैं जो ड्रामा एंड थिएटर को फॉर्म करती हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, क्योंकि आपका ये पहला कोर्स है। तो मैं चाहता ये हूँ कि जब मैं आपको पढ़ाऊँ तो मैं इसकी तमाम बुनियादी चीज़ें भी आपके साथ लेके चलूँ कि ये प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट होता है, ड्रामे का स्ट्रक्चर क्या होता है, ड्रामा कहते हैं किसको, थिएटर ड्रामे के साथ उसका रिलेशनशिप क्या है, और वो ये कि हमारे दरमियान में जो मिसकॉन्सेप्शंस हैं कि जो हम एक थिएटर देखते हैं और हम समझते हैं कि थिएटर जो है ये तो फजूल बातचीत है और इसका कोई असर नहीं है, और इन अदर वर्ड्स वी ब्रैकेट देम एज I mean foolish talk and conversation. तो हम क्या करना चाहते, मैं ये चाहता ये हूँ कि आपको बता सकूँ कि जो ड्रामा एंड थिएटर है वो कितना प्रोडक्टिव है, और पाकिस्तान के अंदर भी अजोका थिएटर जैसे अदारे मौजूद हैं जहाँ पर जो है वो पढ़ाई की जाती है, वो तरीके से ड्रामे को पेश किया जाता है जो कि इंतहाई प्रोडक्टिव है और लाइफ चेंजिंग है। एक्चुअली बात ये है कि ड्रामा जो है वो लाइफ है। फिर आप कहेंगे कि सर लिटरेचर भी तो लाइफ है ना, तो फिर आप यानी ड्रामे को क्यों आप लाइफ के बारे में बार बार कह रहे हैं? तो उसकी वजह ये कि देखिए ड्रामा जो है वो उसका कमाल ये है कि वो इंतहाई ऑब्जेक्टिव है, वो दूसरों को देखते हैं आप उसमें और उससे सबक सीखते हैं, और वो आपकी आंखों के सामने होता है, लाइव होता है। अगर लाइव नहीं भी हो रहा हो तो नूर वो ऐसा लगता है कि जैसे वो लाइव हो रहा है, यानी वो आपको जब उसको आप टीवी पे भी देख रहे होते हैं या आपको फिल्म में भी ड्रामा देख रहे होते हैं तो आपको ऐसा लग रहा होता है जैसे आप वहां पर मौजूद हैं और वहां पर आप इसको एग्जामिन कर रहे हैं। जब भी मैं कोई फिल्म देखता हूं, ड्रामा देखता हूं, तो मुझे हार्डली 2 से 3 मिनट लगते हैं कि 2 से 3 मिनट के बाद मैं उस फिल्म, ड्रामा, थिएटर के साथ कनेक्ट हो जाता हूं। और जब मैं उसके साथ कनेक्ट होता हूं तो क्या होता है कि मुझे अपना आप भूल जाता है और मैं उन किरदारों को, उन कैरेक्टर्स को देख रहा होता हूं और उन कैरेक्टर्स से जिंदगी को एक्सेस कर रहा होता हूं, जिंदगी को जांच रहा होता हूं। तो लिटरेचर का ये जो जॉनरा है जिसे हम ड्रामा कहते हैं, ये इंतहाई प्रैक्टिकल है, इंतहाई ऑब्जेक्टिव है। इसका उल्ट सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव क्या चीज़ है? सब्जेक्टिव ये चीज़ है कि मेरी ज़ात है, मैं अपनी ज़ात में कैद हूँ और मैं अपनी ही ज़ात के बारे में लोगों को बता रहा हूँ। मिसाल के तौर पे पोइट्री एक ज़बरदस्त फॉर्म है जॉनरा की, लेकिन जो पोइट्री है
वो सब्जेक्टिव है, क्योंकि वो मेरी जात के अंदर क्या है. I talk about in poetry about myself. और वो जो पोइट्री है वो मेरी जात की निशानदेही करती है. दिलचस्प बात यह कि ड्रामा पोइट्री को भी उधार ले लेते हैं. मिसाल के तौर पर हम शेक्सपियर पढ़ेंगे, उसके वो पोइटिक ड्रामा है. मिसाल के तौर पर हम इडिपस रेक्स पढ़ेंगे, उसके अंदाज का पोइट्री, उसमें एक पोइटिक स्टाइल है, कोरस है उसके अंदर लोग गाने गाते हैं, लोग सॉन्ग्स लेकर आते हैं. तो ड्रामे में खूबी क्या है? ड्रामे में खूबी ये कि वो ऑब्जेक्टिव होने के साथ साथ वो उन फॉर्म्स को भी इकट्ठा कर लेता है जो सब्जेक्टिव है. ये कमाल है उसका. मैं आपको बताऊं, मैंने हजारों ड्रामे देखे हों लाइफ के अंदर. मैं थिएटर के अंदर, मेरा शौक है, इसीलिए तो मैंने उसमें पीएचडी की. और मैंने आपको बताया कि मेरा एमएस भी जो है वो फिल्म एंड टीवी का है. तो इससे आप अंदाज लगा सकते हैं मेरी कमिटमेंट लेवल क्या होगा इस शोबे के अंदर. 1000 ड्रामे देखने के बावजूद जब मैं उनको देख रहा होता हूँ तो मुझे ऐसे लग रहा होता है जैसे कि मैं हिस्सा हूं उनका, और ऐसा लग रहा होता है कि जैसे वो मेरा हिस्सा. तो ये जो डिफरेंट जॉनरास की कनेक्टिविटी है, ये एक रेयर चीज है कि आप एक ऐसे जॉनरा को स्टडी कर रहे हैं जिसमें पोइट्री भी है और फिक्शन की भी कुछ चीजें इसके अंदर पाई जा सकती हैं. मिसाल के तौर पर आप हमारा जो पंजाबी ड्रामा है और उसके अंदर एक थिएटर है, उसको कहते हैं स्वांग थिएटर. अब स्वांग थिएटर के अंदर क्या है कि नरेटर्स हैं. ठीक है, नरेटर का मतलब क्या होता है कि एक बंदा आता है स्टेज के ऊपर और वो आके बताता है कि ये कहानी क्या है. तो क्या बनता है, क्या होता है, तो फिक्शन की भी कुछ चीजें जो हैं वो ड्रामे के अंदर आ जाती है. कहना क्या चाह रहा हूं, ले जाना क्या चाह रहा हूं, पहले इब्तदाई मेरे आपके साथ चंद मिनट्स हैं और मैं आपको थिएटर की, ड्रामे की दिलचस्प लेकिन कॉम्प्लेक्स दुनिया दिखा रहा हूं. मैं ये कहना चाहता हूं कि ड्रामा इतना इंपॉर्टेंट है कि इसकी बदौलत आपको पोइट्री भी समझ में आने लग जाती है, आपको फिक्शन भी समझ में आ लगती है, और फिर ऑब्जेक्टिविटी ऑफ लाइफ भी समझ में आना. इन अदर वर्ड्स, वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है, जिसका स्टार्ट ग्रीक से होता है और जहां से हम इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसने लाइफ के मीनिंग को समझने के लिए ड्रामा क्रिएट किया. इसका मतलब ये नहीं है कि जो सब कॉन्टिनेंट था, जो साउथ एशिया था, उधर ड्रामा नहीं था, उधर भी ड्रामा था, लेकिन उसकी फॉर्म फर्क थी. जो ड्रामा सब कॉन्टिनेंट में था, वो ड्रामा जो है वो भी रिलीजियस बेस्ड था. मिसाल के तौर पर रामायण, मिसाल के तौर के ऊपर वेद, उन बुक्स से निकला हुआ जो है रिलीजियस गॉड्स की कहानी. और दिलचस्प बात है कि उन्हीं दिनों में ग्रीक्स जो हैं वो भी इसको रिलीजियसली इस्तेमाल कर रहे थे. तो पहली बात ये कि ये जो ड्रामा है, ये इसकी इब्तिदा जो है वो किससे होती है? रिलीजियस ड्रामे से. लेकिन साथियों, वो जो रिलीजियस ड्रामा है उसकी एक पॉलिटिकल बेस है, यानी वो इस कदर जबरदस्त है, इस कदर ड्रामे का असर है. जैसे मैंने आपको कहा कि ये लाइफ है, लाइव भी है और लाइव भी है. तो जो चीज लाइव हो रही होगी उसका क्या होगा? वो तो ऐसे लग रही होगी जैसे जिंदगी है, जैसे हकीकत यही है. तो जो
जो पॉलिटिकल लोग थे जो इनको इन ड्रामों को ऑर्गेनाइज करते थे, उन्होंने ड्रामे की इस ताकत को समझा और समझ के उन्होंने थिएटर्स बनाए। और थिएटर की ताकत ऐसी है जैसे जलसे की ताकत, जुलूस की ताकत। दैट वाज देयर आइडिया कि कोई चीज ऐसी डेवलप की जाए कि उसको देखते साथ ही आपकी आंखें खुल जाए, आप उससे मुतासिर हुए बगैर ना चल सकें और आपके लिए पॉसिबल ही ना हो कि आप उससे इंस्पायर हुए बगैर रह सकें। तो बहुत जरूरी है हमारा कि हम ये देखें कि ड्रामे की रूट्स क्या हैं। और दिलचस्प बात है, मैं आपसे आज छुपाऊंगा नहीं और मैं इब्तिदा कर रहा हूं इस चीज से। जब मैं मेरे फिल्म एंड टीवी के जो टीचर्स हैं, क्योंकि मैं स्क्रिप्ट राइटिंग मैंने सीखी, मैंने ड्रामा लिखना सीखा, तो उसमें मेरे उस्ताद हैं डॉक्टर असगर नदीम सैयद, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, चांद क्रेन उन्होंने। जब मैंने फिल्म की स्क्रिप्ट राइटिंग सीखी तो उसमें मेरे उस्ताद हैं सैयद नूर। और फिर जब मैंने ड्रामे की डायलॉग की को स्टडी करने की कोशिश की तो फिर मेरे उस्ताद हैं खलील रहमान कमर, मेरे पास तुम हो। तो मैं बड़ा हैरान, मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि क्योंकि हमारे यहाँ तस्वुर ये की जाता है कि हम चीजें पढ़ते हैं सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ते हैं, बस हम उसको समझने के लिए नहीं पढ़ते। हम कहते हैं चलो यार कोर्स है, कोर्स समझ के मजबूर है यार, पढ़ना तो है ना, क्या करें। अब दिलचस्प बात यह है कि ये जो ग्रीक फिनोमेना है, जिसके बारे में थोड़ा सा मैं आपसे आज डिस्कस भी करूंगा, और फिर मैं चाहूंगा कि मैं आप लोगों को जानूं, क्योंकि आप लोग आ रहे हैं क्लास में, तो मैं चाहता ही हूं कि जब ये हम सब जमा हो जाए तो फिर मैं आपसे कुछ बातचीत करूं। लेकिन मैं ये फायदा उठाना चाहता हूं, और क्योंकि उम्मीद है कि हमारी क्लासेस इंशाल्लाह ताला ऑन कैंपस भी होंगी, तो फिर तो आप लोगों को भरपूर तरीके से मुझे देखने का मौका मिले इंशाल्लाह। तो मैं आ रहा था वहां पर कि हम जो ड्रामा आपने देखा मेरे पास तुम हो, ये ड्रामा कहां से इंस्पायर है? ये इंस्पायर कहां से है? ये इंस्पायर है ग्रीक ड्रामे से। खलील रहमान कमर ग्रीक प्लेस के शौकीन है, उन्होंने पढ़ा, उस पर वो इंस्पायर है। ठीक, उनके हीरो जो है वो उसने एंड पे मर जाना होता है, उसने सरवाइव नहीं करना होता, और फेट और डिटर्मिनेशन के दरमियान उनके खड़े हुए कैरेक्टर्स, वो भरपूर जोर लगाते हैं, भरपूर कोशिश करते हैं, लेकिन उन्होंने बचना नहीं होता, सरवाइव नहीं कर सकते। दिलचस्प बात यह साथियों कि मेरे से जब मैं एक क्लास पढ़ा रहा था तो ये ड्रामा चल रहा, तो मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे घेर लिया, यानी मैं गिफ्ट यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, मेरे स्टूडेंट ने घेर लिया, कहने लगे कि डॉक्टर साहब इसका एंड क्या हो? तो मैंने कहा इसका एंड तो मुझे पता है, क्योंकि मैं खलील रहमान कमर को जानता हूँ। दानिश ने मरना होगा, दानिश नहीं सर्वाइव कर सकता, क्योंकि वो एक ग्रीक हीरो है, और ग्रीक जो है वो नहीं बच सकते, क्योंकि खुदाओं से मुकाबला करना बड़ा मुश्किल, और खुदा अगर वो और खुदा जो है वो माफ नहीं करते। यहाँ पे मैं एक बोल्ड स्टेटमेंट दे रहा हूँ आपको, इसे समझना बड़ा जरूरी है इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर, क्योंकि सबसे पहले हम जो ड्रामा पढ़ेंगे वो ग्रीक ड्रामा। साथियों याद रखिए कि खुदा अल्लाह नहीं है, अल्लाह में और खुदा में बड़ा फर्क है। खुदा किसी को माफ नहीं करता, उसे गुस्सा आ जाए माफी नहीं है। खुदा इंसान भी हो सकता, खुदा कोई बड़ी चीज भी हो सकती, लेकिन अल्लाह एक है, और अल्लाह जो है वो मेहरबान है, माफ करने वाला, उसके यहाँ माफी। आप तौबा कर लें और फिर आप एक नई जिंदगी की तरफ लौट आए, एक नई पहचान के साथ लौट आए। यू कैन डू दैट, prayers can do miracles, and we believe, as a Muslim we believe that
This is our faith. But in case of God, there is no forgiveness. And there is punishment. You cannot get out of the punishment. Whatever written in your fate is your life. Whatever written in your destiny, it is your life. You cannot get out of it. But the character always struggles. They always plan, always use their mind, always try to escape from that bitter reality. And when they try to escape the bitter reality, they become hero. वो हीरो बन जाते हैं क्योंकि वो गम को फेस करना चाहते हैं, वो मुश्किलात को फेस करने को तैयार है। और इंसान का ये वो हीरो है जिसकी एक डेफिनेशन है। ये हीरो है जो कि मुश्किलात से घबराता नहीं है, डरता नहीं है, लड़ता है, आखिर दम तक लड़ता है, लेकिन खुदाओं के सामने कैसे खड़ा। ग्रीक गॉड्स तो छोड़ने को तैयार ही नहीं उसको। इसी से मिलते जुलते जो है वो हिंदू खुदा, वो भी नहीं छोड़ने को तैयार, वो भी माफ करने को तैयार नहीं है। और इसमें वो स्टोरीज पैदा होती हैं, वो पैदा होती है। मैं अभी आपसे एक बात करने लगा था क्योंकि आज पहली क्लास है। आई वुड लाइक टू डिस्कस द फिलॉसफी ऑफ ड्रामा एंड थिएटर। मेरी पिछले दिनों की बात है, मेरे अंकल हैं, वो डीन रिटायर हुए हैं जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी अमेरिका से, डॉक्टर इकरामुल हक, इंजीनियर हैं बाय प्रोफेशन। तो वो मुझे बात करने, वो कहने लगे कि लाइफ के ऊपर बात हो रही थी मेरी उनके साथ। तो उन्होंने कहा कि देखिए लाइफ में तो सिर्फ दो ही चीजें हैं बस, या फेट या डिटर्मिनेशन है। यानी या इंसान अपनी लाइफ को बदल सकता है, ठीक है, या फिर फेट के सहारे वो कहे। उन्होंने कहा कि बात ये कि ये जो कॉन्सेप्ट है, ग्रीक कॉन्सेप्ट, क्या फेट जो है वो बड़ी आम चीज है। यानी आपकी तकदीर, आपका मुकद्दर, ये एक दफा लिखा जाए तो ये बड़ा मुश्किल है इससे जान छुड़ाना। तो वो मुझे कहने लगे कि तैमूर, दिस इज हाउ आई डिफाइन लाइफ, एंड लाइफ इज एवरीथिंग सर, लाइफ इज एवरीथिंग। मैं और आप जो है सब कुछ कर रहे हैं, इसके बगैर अगर इसके में मीनिंग नहीं है तो फिर हम क्यों कर रहे हैं। और अगर लाइफ के मीनिंग ही नहीं है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि वी हैव टू डिस्कवर द मीनिंग, वी हैव टू क्रिएट द मीनिंग। तो ड्रामा क्या कर रहा है? ड्रामा आपकी जिंदगी को दूसरों के एंगल से सामने ला, यानी आप उन कैरेक्टर्स को देखते हैं और आप कहते हुए या तो मेरी जिंदगी, ये तो मेरी कहानी है, इनको कैसे बदल चलेगी मेरी कहानी। And that's how it becomes interesting. That's how it becomes so amazing. मैं आपको बात बताऊं कि जुमले इंसान की जिंदगी बदल देते हैं। डायलॉग्स इंसान को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। आपको किसी ने किसी लम्हे मोटिवेट किया हो तो आप में क्या होता है कि आपके अंदर एक जज्बा पैदा हो जाता है। आप कहते हैं यार आई कैन डू इट। और वही अगर आपको लोग डिसाइड करें, अगर आपको लोग जो है वो डिसाइड कर दे तो क्या होगा? देन ऑल ऑफ सडन यू बिकम डिस्प्रेस्ड। डायलॉग जो है वो उसकी मीनिंग से। तो मैं यहां से आप लोगों को एंगेज करना चाहता हूं और मैं यहां से आप लोगों को इस तरफ लाना चाहता हूं। मैंने क्यों ये बातें की, मैं क्यों ये एंगेजमेंट करना चाहता हूं आप लोगों के साथ, इसलिए कि जाहिर है हम ऑलमोस्ट 16 वीक्स जो है वो इसके साथ कनेक्ट रहेंगे, एंगेज रहेंगे। और मेरे लिए बड़ा ज़रूरी है
कि मैं आप लोगों को इसके अंदर जो है वो इंगेज रखूं, और उसकी इंगेजमेंट के लिए जरूरी है कि क्यों इंगेज हो, हम क्यों पढ़ें इसको, क्यों जरूरी है ये हमारी चीजें, और क्यों हमें इसे पढ़ने की जरूरत है। ये बहुत बुनियादी चीजें, ये वो फर्क है जो मैंने आपको आज आपके साथ डिस्कस किया। पहला मेरी इंटरेक्शन है आप लोगों के साथ। मैंने गहरी, मुझे पता है कि मैं गहरी बातें कर रहा हूँ, लेकिन लाइफ है ही गहरी। लाइफ इज डीप, लाइफ इज कॉम्प्लेक्स, लाइफ इज फुल ऑफ मीनिंग, लाइफ इज वर्थ एग्जामिनिंग। यू हैव टू एग्जामिन लाइफ। और आप जिस उम्र में हैं, इस उम्र में एग्जैक्टली आप ही की उम्र में मैं अमेरिका में था, एंड आई वाज ए स्टूडेंट ऑफ ए 4-year प्रोग्राम, क्योंकि मैंने भी BS किया हुआ है। तो मैं जब इस तरह कि मैंने एक दिन मैंने एक ड्रामा की क्लास अटेंड की, that was my first class, first exposure, and the teacher, he talked about that, about life, about meaning, and I raised my hand because मैं तो ये समझता रहा कि लाइफ जो है वो प्रोफेशन होने में है, लाइफ जो है, लाइफ क्या है, लाइफ कैरियर है, लाइफ फ्ला है, लाइफ ये है। तो I raised my hand. And he said, yes, Taimur, what's your question? I said, my question is that, why I should study life? Why I should study life? And he said, he smiled, and he said, because there is nothing before and after it. Life is this. This is your life. And if you know how life treats you, that's the only way you know the life. And knowing life is the most important thing. Know yourself is very important. And then I remember Bulle Shah. Then I remembered, Sayyid Ali Hajweri, that how they said, discovering yourself is so important. So I was a young student. And after that class, what I did is, I was a business, major. And then I selected literature as my minor. And I said, this is interesting. This is very interesting. It's very mind-blowing for me. I was young like you. And I have a dream, and it was a different country. And I am studying in a different country. And they are discussing things which are very rare to me. I never discuss these things. Why life is significant, why my life is important, why I should study life. मैं समझता था तो जिंदगी तो ऐसे हो जाती है ना. And then I realized nahi, it's time to study life. And once you start studying life, that brings a lot of change, because life is a challenge. At Sabha said to me, life, she's absolutely right on it. Life is a challenge. It's a big challenge. So if you study life, then you can face the challenge. क्यों सभा? मैं सभा से बात कर सकता हूँ सभा? सभा से मेरी बात हो सकती है? सुबह मेरी आवाज आ रही है? सभा ये बताएं सभा के अगर मैं अगर लाइफ चैलेंज है, तो अगर इसका मतलब क्या है कि मुझे लाइफ को समझने की जरूरत है। अगर मैं समझूंगा तो मैं अब अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ। आप क्या कहते हैं? यानी आप ये समझती हैं कि ये मैं सही, मेरी स्टेटमेंट सही है?
और अमीरा ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। अमीरा ने कहा कि सर वी कैन अंडरस्टैंड लाइफ। यस, ये कोर्स जो है ये क्या, ये इस कोर्स को पढ़ने के बाद आप वो नहीं रहेंगे। यू हैव अ न्यू डायमेंशन एडेड टू योरसेल्फ। इसलिए कि ये बड़ी जरूरी चीज है, यही चीज मिसिंग है हमारी पढ़ाई में। ये जो ऑब्जेक्टिवनेस है ये मिसिंग है हमारी लाइफ। हम चीजों को रटा लगा लेते हैं, याद कर लेते हैं, दैट्स इट। यू नो, व्हाट अबाउट डिस्कवरिंग लाइफ, व्हाट अबाउट डिस्कवरिंग योरसेल्फ? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहीं से मैं चाहता हूं कि आप लोगों को एंगेज करूं थोड़ा सा, फिर इसी बहाने आप लोगों को जानने का इत्तेफाक हो। तो स्टार्ट लेते हैं हमना शायद से। हमना से मेरी बात हो सकती है? हमना, हमना मेरी बात हो सकती है? फरवा से बात हो सकती है? अच्छा, ये नहीं, हमना से बात करा। कौन बात कर रहा है मेरे से? फरवा बात करी? यस सर। अच्छा फरवा, ये बताएं कि ये जो मैंने बातें की हैं, जो मैंने अपने इस कोर्स को उसको एक इंट्रोडक्शन दी है, उसको लोकेट करने की कोशिश की है, तो क्या आपके ख्याल में लाइफ जो है, दूसरों की लाइफ से सबक सीखा जा सकता है? यस सर, मोस्टली हम लोग इंस्पायर होते हैं दूसरों की स्टोरीज को लेके। लाइक मैं खुद अपनी कजन से जो है बहुत इंस्पायर हूँ, और मैं ट्राई करती हूँ कि मैं जैसे उसके वो सारे हैं, जैसे वो स्टडी करती है, जैसे वो सारी उसकी डिटर्मिनेशन है, मैं उसको फॉलो करूँ और मैं उसके अकॉर्डिंग उसकी लाइफ से इंस्पायर हो के मैं भी उसकी तरह कुछ बनूं। बहुत अच्छी बात है आपने। फरवा, आपने ये बताइए कि इसका मतलब ये कि वो आपकी हीरो है? नो डाउट सर। तो अगर फर्ज करें वो आपकी हीरो है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अपनी लाइफ में जब जो चीज पढ़ते हैं या जो हमारी आंखों के सामने होती है, परफॉर्म होती है, वो हमें इतना इंस्पायर कर सकती है कि हम अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करें। यस सर, एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन आई थिंक होती इसी वजह से है, जब हम किसी को जो है वो हमें एक चीज इंस्पायर करती है, तो हम ट्राई करते हैं कि हम जो है ना, हम भी सेम उसके जैसे ही हो जाएं। लाइक हमें वो उसमें जो है एबिलिटीज हम चाहते हैं कि हम वो अडॉप्ट करें। अगर हमें नहीं है तो हम किसी ना किसी तरीके से वो एबिलिटीज जो हैं अपने आप में ले आए। तो आई कैन से दिस अकॉर्डिंग टू मी। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात की आप। आमना मंजूर से बात होती मेरी? यस सर। आमना, ये बताएं कि ये बताएं आप कि जो लाइफ है जो कि जिसमें चैलेंजेस हैं, स्ट्रगल्स हैं, तो जब हम ये देखते हैं, हम किसी की स्टोरी पढ़ते हैं और हम देखते हैं कि वो लाइफ में, वो स्ट्रगल में वो कामयाब हो गया, तो एक मैसेज हमें मिलता है। तो आपके ख्याल में वो जो स्टोरीज जिनका मैसेज हो, वो ज्यादा बेहतर नहीं है उनका जिनका मैसेज ना हो? यस सर, लेकिन ये भी तो है, जब तक हम सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होंगे, जितने मर्जी लेसन हो हम नहीं सीख सकते। कितनी जबरदस्त बात की आमना आपने, बहुत ही मुझे लगा क्लास तो आपकी बड़ी ज़हीन क्लास है। आई मीन बिगिनिंग टू लाइक योर क्लास। कि देखें, ये बताएं कि ये जो सेल्फ मोटिवेशन है, ये क्या चीज है? ये जरा थोड़ा सा इस पे भी जरा बात करें। सर बेसिकली सेल्फ मोटिवेशन आपके अंदर की होती है। जैसे अगर हमें ही ना पता हो कि हमारे अंदर एबिलिटीज क्या है, हम कैसे सेल्फ मोटिवेटेड हो सकते हैं? तो अपने आप को जानना, अपने होने की वजह जानना। तो ये जो अपने आप को जानना है, अपने होने की वजह जानना है, ये हम कैसे हासिल करते हैं? ये हमें चीज कैसे मुयस्सर आती है? चीजों को देख के, सोच कर। क्या लिटरेचर ये काम कर सकता है? क्या लिटरेचर आपको ये तोहफा दे सकता है, ये गिफ्ट दे सकता है आपको? यस, लिटरेचर में तो होता है, जब हम देखते हैं, सोचते हैं। जी, तो क्या मेरा सवाल है तस्कीन फातिमा से मेरा सवाल है, अगर वो मेरे से बात कर सकें।
यस सर। तस्कीन, ये हमारी बात आगे की तरफ जा रही है और हम लिटरेचर को हम समझ रहे हैं कि लिटरेचर जो है वो एक टूल है जिससे हम अपने आप को भी डिस्कवर कर सकते हैं और यस सर, हम और लाइफ के मीनिंग ढूंढ सकते हैं। यस सर, क्योंकि लिटरेचर में ड्रामास वगैरह होते हैं, तो ड्रामास जो होते हैं वो रियल स्टोरीज वगैरह पे होते हैं, तो जो ड्रामास होते हैं हम उसको उससे रिलेट करते हैं, तो वो हम उससे लेसन्स वगैरह भी सीखते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा ये बताएं कि जो आप लोगों की कभी किसी की ख्वाहिश है कि वो जैसे हम ड्रामे देखते हैं या पढ़ते हैं ड्रामे, सर आपने तो इंटरमीडिएट में भी तो ड्रामे पढ़े ना, और उसके इंग्लिश की सिलेबस में है ड्रामे। यस सर। तो आप लोगों में से किसी की ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं इस काबिल हो सकूं कि मैं खुद ड्रामे लिख सकूं? यस सर, जी रबिया। सर बिकॉज मैंने अपनी लाइफ में ना बहुत से ऐसी चीज़ें देखी हैं कि वही चीज़ें जो है ना वो ड्रामाज में हो रही होती हैं, और जो मैं देख रही होती हूँ मेरा दिल ये करता है कि मैं उसी स्टोरी को लेके एक ड्रामा के फॉर्म में लेके आऊँ अपने माइंड में। मैं जो है ना वो बताती हूँ अपने आप को ही बना बताती हूँ, किसी को नहीं, अपने माइंड में जो है ना वो ड्रामा बना के क्रिएट करती हूँ। और वाकई सर ये रियल स्टोरीज होती हैं, मैंने ऐसे ड्रामाज देखे भी हैं लाइफ में। यानी आप ये देखें, हमारा काम ये कि हम स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर के साथ साथ अगर हैं तो हमारा काम ये भी देखें कि ये ड्रामे कैसे लिखे जा रहे हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या है, इनकी साइंस क्या है, ये प्लॉट कैसे बनाया जाता है, डायलॉग कैसे लिखे जाते हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह ताला इस कोर्स में मेरी जी प्लीज। बिल्कुल सर, हम ये तो जब ये कोर्स पढ़ेंगे इसमें पता चलेगा कि ड्रामा बेसिकली राइट कैसे किया जाता है, बिकॉज हर किसी का सेंस ऑफ ह्यूमर चेंज होता है किसी से, और हर किसी के माइंड में डिफरेंट वेज में आती है हर चीज। तो वो जब हम ये कोर्स पढ़ेंगे तो मुझे ये चीज इस चीज का पता भी है कि जब हम ये कोर्स को पढ़ेंगे उसके बाद हम ये कर सकते हैं कि हम वही चीज को देख के तो हमारे माइंड में जो भी ड्रामा चाहे वो छोटा है या बड़ा है तो उसको हम राइट कर सकते हैं स्टोरी की फॉर्म में या ड्रामा की फॉर्म में। ये मुझे बताएं रबिया कि अगर फर्ज करें कि मुझे स्ट्रक्चर पता चल जाए ड्रामे का, मुझे पता चल जाए कि ड्रामा कैसे लिखा जाता है, तो इसका मतलब है कि मैं उसको मुझे पढ़ने में समझ में आने में कितनी सहूलत हो जाएगी? बिल्कुल सर, क्योंकि सर जो चीजें हमें पता चल गई हैं और हमें ये भी पता चल गया कि हम इस चीज को कैसे राइट कर सकते हैं, तो वो तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा ना। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि अगर इसकी हम प्रैक्टिकल नॉलेज का हमें मौका मिलेगा समझने का, तो फिर तो ये हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा कि हम ना सिर्फ इन ड्रामों को क्रिटिसाइज कर सकें, ठीक है, बल्कि इन ड्रामों को आगे लेके चल सकें। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक। अच्छा ये बताएं कि ये सीआर क्लास का कौन है? सर सीआर कोई भी नहीं है, जीआर है। जीआर कौन है? सना अब्दुल नासिर है, लेकिन आई थिंक वो भी नहीं है आज क्लास में। अच्छा सर एक्चुअली उनके फादर का थोड़ा सा इशू चल रहा है, उनके फादर ठीक नहीं, इसलिए वो ना जरा क्लासेस नहीं ले रही। तो आप ही क्लास में फिर ये सना बताएं। सर वो सना के फादर की सर्जरी हुई है जिसकी वजह से वो क्लास अटेंड नहीं कर पा रही, अदरवाइज वो बहुत ब्राइट स्टूडेंट है और वो कोई क्लास नहीं छोड़ती है। अच्छा, तो वो हम हर टीचर को बता रहे हैं उसके बारे में, तो वो थोड़ी टेंस है जिसकी वजह से वो क्लासेस नहीं ले पा रही। मैं समझ। अच्छा ये बताएं, भी कर दिया था उसके बारे में अभी, तो वो कह रही थी कि वो नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह आ जाएगी। इंशाल्लाह ताला। अच्छा ये बताएं, आपके ये कितने स्टूडेंट्स हैं आप क्लास के अंदर? राइट नाउ सर 40 है। तो इसका मतलब कि सारी क्लास आई है वो 39? नहीं सर, ऑलमोस्ट 50 हैं, कुछ बच्चे अभी तक नहीं आए। यानी ये क्लास आपकी ऑलमोस्ट 50 स्टूडेंट्स पर है? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश होगी। ज़ाहिर है पहली क्लास में तो मैं
मुझे अंदाज़ा है, और नेक्स्ट क्लास से ज़ाहिर है मैं वो अटेंडेंस वगैरह भी और दूसरी चीज़ें भी उसको एग्जामिन करना होता है, लेकिन जो पहली क्लास होती है ओरिएंटेशन क्लास है, मैं समझता हूँ कि ज़ाहिर है लोग ज्वाइन कर रहे हैं, उनको पता चल रहा है इस क्लास का, और कुछ स्केड्यूल भी चेंज हुए हैं तो ज़ाहिर है उससे भी फ़र्क पड़ता है। तो ये जो CR और GR है, इनके ये तो CR तो कोई भी नहीं ना इस वक्त। नो सर, CR नहीं है, GR ही काफी होती है हमारी। अच्छा यानी वो एक ही काफ़ी है। अच्छा, मैं चाहता ही हूँ कि मुझे, क्योंकि कुछ चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं और ये पहली क्लास में ही मेरा ज़रूरी है कि मैं आपको वो बता सकूँ, वो ये कि आप लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम भी आए पूरे हफ्ते में, क्योंकि आगे चल के मैंने असाइनमेंट्स देनी है और भी बड़ी मुख्तलिफ चीज़ें होंगी, ठीक है। तो बड़ा ज़रूरी है कि बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जो हैं वो एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं। तो आप इससे पहले आप लोगों को कोई व्हाट्सएप ग्रुप था किसी और? जी सर, होते हैं जी सर, तो सब सब्जेक्ट्स के बने हुए हैं। ठीक है, तो वो जो सब सब्जेक्ट बने हैं वो कौन बनाता है? GR ये बनाती है। तो ये जो है ये अगर GR की प्रेजेंस नहीं आती तो फिर ये कौन बनाता है, कौन कर सकता है ये काम? I can do that. जी आंसर सर, जी प्लीज जी आंसर। सर, मैं अपनी क्लास का CR हूँ और बाकी सेक्शन में भी हूँ, अगर आप कहें तो मैं बन लेता हूँ इसका भी, अगर क्लास को कोई एतराज ना हो तो। जी क्लास, देखिए मुझे तो 2 लोग चाहिए, 2 लोग मेरे, हाँ मुझे 2 लोग चाहिए। हाँ, हम लोग तो पहले भी CR थे। हाँ 2 लोग मुझे चाहिए, क्योंकि वजह इसकी कि एक तो GR होगी आपकी, और एक मैं आप लोगों की इजाजत से आंसर को मैं चाहता हूं कि, क्योंकि आंसर को पूरा प्रोसेस पता होगा, ऐसे ही आंसर। यस सर, श्योर। तो आंसर ऐसे है कि आपने GR के साथ मिलके, अगर वो अवेलेबल होती हैं, अगर अवेलेबल नहीं भी होती तो आप लोगों ने करना ये है कि आपने फौरी तौर पे एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है, ठीक है। जरा मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लें आप, मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें। और ये मैं आपको सबको कह रहा हूँ, आप लोग मुझे जो है ना, मैं बड़े फख्र से जो है ना वो स्टूडेंट के साथ कनेक्ट होता हूँ, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू नो, और नो प्रॉब्लम। तो नंबर नोट कर लीजिएगा 0302 523 2533, ठीक है आंसर? 0302 जी सर 523 2533। ये मेरे बाकी साथी भी जो अटेंड कर रहे हैं क्लास, ये मेरे नंबर नोट कर सकते हैं, दे कैन टॉक टू मी डायरेक्टली, नो प्रॉब्लम। मैं हर वक्त जो है ना वो अवेलेबल होता हूँ। तो एक तो ये कि आपने ये व्हाट्सएप ग्रुप जो है ना ये डेवलप कर, फिर आपकी एक साथी थी, मेरी सबसे पहले उनसे मुलाकात हुई थी, मेरी आज सबसे पहले मुलाकात किससे हुई है मेरी? सब मेरे से। अपना नाम बताइएगा। हाँ, उमामा से मेरी बात हुई। जी सर, मेरे से भी हुई है, मैं इधर मार्केटिंग ऑफिस में होता हूँ निशान साहब के साथ, तो फोटोग्राफी में मिले थे हम। अच्छा, वाह भाई वाह, ये देख लें, सेक्शन चेंज करा के आपकी क्लास में आता। क्या? ओ बिल्कुल, मेरी आपसे मुलाकात हुई थी, आपने मुझे बताया था कि मैं आपकी क्लास में आया हूँ सेक्शन चेंज करवा के, ऐसा ही था जी है ना? तो सर ये तो बड़ी कमाल बात होगी यार, फिर तो आपके साथ तो पुराना ताल्लुक भी हो गया। जी सर, वैसे निशान साहब भी आप जानते होंगे ना, असिस्टेंट मैनेजर हमारे। बहुत अच्छा, बहुत आला, एक्सीलेंट। अच्छा, तो आंसर ऐसे है कि एक तो ये चीज है, आप व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, तो मैं आपसे ना अपना यूट्यूब चैनल का
लिंक शेयर कर लूंगा। उसमें मैंने क्या किया कि मेरी उसमें ना रिकॉर्डिंग्स हैं लेक्चर्स की, और उसके अंदर एक रिकॉर्डिंग है जो कि पहले है ग्रीक थिएटर के ऊपर, कि ग्रीक थिएटर क्या है। मैं चाहता क्या हूं, मैं चाहता ये हूं कि आप लोग ये चीजें पढ़ें, सुने, देखें, और कहने का मतलब ये कि अगर कोई असाइनमेंट आती है, कोई दूसरी चीज होती है, आप तो आपके पास मेरे रिसोर्सेज मुसलसल मैं अपलोड करता रहूं और आपको वो रिसोर्सेज मिलते रहे, ठीक है, ताकि आप लोग उसके साथ वेल कनेक्ट रहें, ताकि हम उन वीडियोस को भी डिस्कस करें, टेक्स्ट को भी डिस्कस करें, और आपके पास मल्टीपल रिसोर्सेज हों ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि मैं बड़ी मेहनत कर रहा हूँ इस चीज के ऊपर कि आप लोगों को जो स्टूडेंट हैं उनके पास क्या हो कि एक्सेस हो, चाहे वो व्हाट्सएप के थ्रू हो, चाहे वो यूट्यूब चैनल के थ्रू हो, वो चैनल वो अवेलेबल होनी चाहिए, ताकि आप लोगों को कोई भी चीज़ है, कोई कॉन्सेप्ट पढ़ने में समझने में प्रॉब्लम आई है तो आप वो जाएं और वो कॉन्सेप्ट को देख सकें और उसके बारे में जान सकें। इसके अलावा मेरे पास एक और जरिया भी हो कि मैं आपकी चीज़ों को मिसाल के तौर पर आपके साथ जो मेरी डिस्कशन है इसको भी अपलोड करना चाहूँ तो वो भी अपलोड कर सकूँ। तो काइंडली मैं चाहता ही हूँ कि ये व्हाट्सएप ग्रुप आंसर आप ये डेवलप करें, और उसमें फिर मैं आपको अपना लिंक भी शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में जो मेरा यूट्यूब चैनल का है, ताकि आप उस पर भी मेरे साथ कनेक्ट हो सके। तो हमारी कनेक्टिविटी से ही हम सीख सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये कि उम्मीद है कि जैसा फिजा ने बात की कि इंशाल्लाह ताला क्लासेस जो हैं वो जो है वो ऑन कैंपस हो जाएंगी, और जब ऑन कैंपस हो जाएंगी तो और अच्छा हो जाएगा हमारे लिए, ठीक। लेकिन तब भी आपके लिए ज़रूरी है कि आप मेरे लेक्चर्स को जहाँ चाहें वो देख सके, मैं टॉपिक्स आपको असाइन कर सकूँ, बता सकूँ कि ये टॉपिक पर आप ये वीडियो देखें, ठीक है। ये दिस इज द वे हाउ आई टीच। मेरी एक बात याद रखिएगा, मैं कोई चीज़ भी बगैर बताए आपको नहीं दूंगा। देयर इज नो सरप्राइज इन माय क्लास। आप जो आपके जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं उनसे आप लोगों की मुलाकात होती रहती होगी, ठीक है, और ये आंसर भी आपको बताएगा, दूसरे लोग भी बताएंगे कि आई डोंट बिलीव इन सरप्राइजेस। मैंने अगर आपको असाइनमेंट दिया तो मैंने बताना है आपको कि आपने असाइनमेंट को कैसे अटेम्प्ट करना है। अगर मैंने आपको असाइनमेंट दिया और आपने मैंने उसको चेक किया, आपके नंबर ठीक नहीं आए हैं, तो मैंने आपको बताना है कि आपकी ये गलती, आप ये गलती ठीक कर लें तो आपके असाइनमेंट के नंबर बढ़ जाते हैं, नो प्रॉब्लम। तो मेरी जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है वो ये है, टू एंगेज एंड इन्वॉल्व स्टूडेंट्स। द मोर आई एंगेज एंड इन्वॉल्व माई स्टूडेंट्स, द मोर ईजियर देयर लाइफ इज, द मोर प्रोडक्टिव दे बिकम। ये मेरी टीचिंग स्ट्रेटजी, टीचिंग फिलॉसफी। तो इसलिए बड़ा जरूरी है मेरा कि मैं आपके साथ डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जो है वो इकट्ठे हूं, जैसे व्हाट्सएप को। दूसरी बात ये कि ये मेरा जो मोबाइल नंबर है ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये मेरी जाती प्रॉपर्टी नहीं। आप लोग जो हैं कभी भी जो है वो इसको यूज कर सकते हैं, मेरे से बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात है कि इसका जो नाम है वो अपनी क्लास के नाम के हिसाब से रखना है आंसर, यानी मैंने जो क्लास का टाइटल है क्लासिक्स इन ड्रामा, और जो आपका वो है ग्रुप का नाम, ठीक है। ओके सर, ठीक। ले जी, ये तो बात हो गई, मेरी बारे में बातचीत हुई, मैं आपके बारे में जानना शुरू करूंगा। ज़ाहिर आप लोगों को जानने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह ताला वो एक कनेक्टिविटी डेवलप हो जाएगी जिसके ऊपर हम काम करेंगे। तो असाइनमेंट दूंगा तो मैं एक वीडियो ये भी अपलोड करूंगा, क्लास में भी समझाऊंगा, और मैं वीडियो भी आपके साथ शेयर करूंगा जो उसकी कि हाउ टू मेक असाइनमेंट्स, ताकि आपके दूसरे सब्जेक्ट में भी वो काम आए कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। इसके अलावा ये कि मैंने आपको बताया कि मैं
मैंने पीएचडी की है लिटरेचर के अंदर और विद ड्रामा एंड थिएटर स्पेशलाइजेशन। इसके अलावा एक और बात भी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और ये बताना चाहता हूँ कि मैं गिफ्ट लैंग्वेज सेंटर है यूनिवर्सिटी का, उसका मैं डायरेक्टर हूँ, और हम इसके अंदर हम डिफरेंट लैंग्वेजेस पढ़ाते हैं, रशियन लैंग्वेज, टर्किश लैंग्वेज, चाइनीज़ लैंग्वेज। उसमें भी मेरी फ़िलॉसफी ये है कि जब लैंग्वेज पढ़ाई जाए तो उसके अंदर ड्रामे को पढ़ाया जाए। तो ये मेरा दूसरा रोल है इस यूनिवर्सिटी के अंदर, गिफ्ट यूनिवर्सिटी के अंदर, जो लैंग्वेज के साथ मेरी कनेक्टिविटी। तो मेरी कोशिश ये होगी कि जब हम ड्रामा पढ़ रहे हैं, चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो जो लैंग्वेज स्किल्स भी आपकी इंप्रूव हो सकती हो वो हों। लेकिन फिर दोबारा मैंने आपको बताया कि आप असाइनमेंट जमा करा रहे हैं, मैं चेक करके वापस कर रहा हूँ आपको, उसमें से आपको बता रहा हूँ कि इसमें ये चीज़ इंप्रूव हो, ठीक है। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये होगी कि आप नकल ना करें, चीट ना करें, ठीक है। और जितना आप चीटिंग से बचेंगे उतना ही आप आगे ग्रो करेंगे, उतनी आप आगे बढ़ेंगे। मैं आपको, मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको सिखा सकूंगा कैसे जो है ना वो हम प्लेजराइजेशन से बच सकते हैं, इन चीज़ों से बच। अच्छा, अब मैं चाहता ये हूं कि मैं आप लोगों के साथ जो है वो अपनी स्क्रीन शेयर करूं। एक सेकंड। और मैं आपके साथ पास आऊं और मैं आपको थोड़ा सा इस मौके से फायदा उठाते हुए आप लोगों को ये दिख रहे हैं आपके, इसके अंदर मैंने आप लोगों के लिए मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो रखी हैं, जिसके अंदर आपके लिए जो है वो लेक्चर्स की स्लाइड्स हैं, ठीक है जी। उसके अलावा जो है वो आपकी हैंडआउट्स हैं, और ये मैं पहले आपको कोर्स डिस्क्रिप्शन की तरफ आना चाहता हूं कि मेरा कोर्स का डिस्क्रिप्शन क्या है। It's a 3 credit hour course that focuses on theatre and drama in Europe. The course content has been divided into sub-genre which cover 2 primary types of drama. 2 तरह के ड्रामे हम पढ़ेंगे, एक कॉमेडी है और एक क्या है, एक ट्रेजेडी है। हम ट्रेजेडी से स्टार्ट करेंगे जिसको इडिपस रेक्स है, ये ट्रेजिक ड्रामा है। और दिलचस्प बात ये कि इसको 2500 साल हो गए हैं, और ये 2500 साल से ये जो ड्रामा है ये एक मॉडल है कि कैसे ड्रामा क्रिएट किया जाता है, कैसे ड्रामा लिखा जाता है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। और मैं इस डायमेंशन को भी इग्नोर नहीं करना चाहता। ये एरिस्टोटल का एक विजन था जिसको इसको पोइटिक्स कहते हैं। 2500 साल पहले उसने किताब लिखी कि ड्रामा कैसे लिखते हैं, उसके अंदर इस प्ले को शामिल किया, इस प्ले को की बनाया। यहां से हम स्टार्ट करेंगे। तो हम ड्रामे 2 तरह के पढ़ेंगे, कॉमेडी और ट्रेजेडी। उसके अलावा क्या है कि the taught course will be major emphasis on text as well as their performances. ये है वो जहां पर मेरी, क्योंकि मेरा स्पेशलाइजेशन मैंने आपको पहले बताया कि this is my life, you know. I mean, I love it, and I love to see student perform. मैं आप जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे मैं आपको दिखाऊंगा कि आप स्टूडेंट टॉक शो करते हैं, हम टॉक शो अरेंज करेंगे, ठीक है। टॉपिक्स के ऊपर टॉक शोज होंगे, टॉपिक के ऊपर मैं अलाउ करता हूँ स्टूडेंट को कि वो या टॉक शो में जाएं या फिर वो परफॉर्म करें, ठीक है। इसके अलावा हम परफॉर्मेंस देखेंगे। ये जरा म्यूट कर लीजिएगा जरा। इसके अलावा क्या करेंगे कि हम क्या करेंगे कि हम इसको हम ना सिर्फ देखेंगे बल्कि क्या करेंगे कि हम इसको परफॉर्म करेंगे, इसकी परफॉर्मेंस देखेंगे,
इडिपस रेक्स ड्रामा, ठीक है, ये कैसे परफॉर्म हो रहा है, कैरेक्टर्स कैसे आ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, ठीक है, कैरेक्टर की फॉर्मेट क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। तो ये 3 चीजें जो हैं ये मेरे क्या है, ये कोर्स डिस्क्रिप्शन। फिर इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं टू फेमिलाइज स्टूडेंट विद ट्रेडिशन ऑफ थिएटर एंड ड्रामा इन ग्रीक एंड इंग्लिश कॉन्टेक्स्ट। मैंने आज बुनियाद रखी है आपके साथ, ट्रेडिशन के बारे में मैंने बात की, मैंने इंडिया के बारे में बात की, मैंने ग्रीक्स के बारे में बात की, मैंने बताया कि ये रिलीजियस ड्रामा है, ठीक है, और मैंने बताया कि खुदा और अल्लाह में क्या फ़र्क है। मैंने बताया कि किसी की टेक्स्ट को पढ़ने से पहले ज़रूरी होता है कि आप उसका कल्चर समझें, बगैर कल्चर समझे आप टेक्स्ट नहीं पढ़ सकते, चाहे फिक्शन है, चाहे ड्रामा है, चाहे पोइट्री, आप उसको नहीं पढ़ सकते। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये है कि टू एनहांस द नॉलेज ऑफ, to introduce the student to some genre like tragedy and comedy in study of drama, to help the student understand the theory and politics of performance and its relationship with the text. वो ये कि ये जो हमारे यहाँ ड्रामे आ रहे हैं, तो ये क्यों आ रहे हैं, ये ड्रामा क्यों परफॉर्म हो रहा है, ठीक है, बिकॉज इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि ड्रामा क्यों आ रहा है, इसलिए आ, इसको क्यों लिखा गया। याद रखिए कोई टेक्स्ट भी होती है ना, वो जमाने और लोकेशन के साथ कैद होती है। या अब ये ग्रीक ड्रामा, ये ग्रीक्स के लिए लिखा गया, ये ड्रामा लिखा गया उस जमाने के लिए लिखा गया, हाँ, क्योंकि इसका इन्फ्लुएंस अभी भी है, तो दैट्स व्हाई इट्स वेरी सिग्निफिकेंट। इसके बाद इसके अलावा फिर ये टेक्स्ट है, ये वो टेक्स्ट है जो हम पढ़ेंगे। ये तमाम की तमाम टेक्स्ट मैंने स्कैन करके, और कई टेक्स्ट तो ऐसी हैं जिनको ना सिर्फ मैंने स्कैन किया बल्कि मैंने उसके साथ इनकी ट्रांसलेशन, इनकी पैराफ्रेजिंग भी दी, ताकि आपके लिए और आसान हो, ठीक है। तो ये जो टेक्स्ट हैं ये भी हम पढ़ेंगे, इसकी तरफ भी हम जाएंगे, ठीक। और ये वो चीजें हैं जो कि फिर हम सर है आगे चल के हम इसको देखेंगे। तो मैं अब अभी तो मैं सिर्फ आपको इसकी वही दिखाना चाह रहा था, लेकिन इसके बाद मैं इंशाल्लाह ताला चाहूँगा कि ये चीज़ें जो हैं ये आपके साथ डिस्कस करके ये हम लेके चलें। ये तमाम चीज़ें साथियों मैंने क्या की है कि मैंने आपके कोर्स में रखी, ताकि कोई टेक्स्ट ऐसी नहीं है इसमें आपको प्रॉब्लम आए। आप उसको कोशिश करके उसे आप प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है, और प्रिंट करके भी उसके साथ जो है वो चल सकते हैं। तो ये क्लियर है, ये बात हुई आंसर? जी सर, मैंने ग्रुप भी बना लिया, बस लिंक भेज दिया इनको। ठीक है। उसके अलावा ये कि इसके अंदर जो मैंने डिटेल कोर्स आउटलाइन दी आपको, अगर आप वो पहले लेक्चर में जाएंगे तो जो डिटेल कोर्स आउटलाइन है उसमें देखेंगे, तो उसमें मैंने ये भी बता दिया आपको कि आप पे कितनी असाइनमेंट्स होंगी, किस तरह हम लेके चलेंगे, ताकि आपकी तरफ से कोई भी चीज़ जो है ना वो क्या हो, वो आपको किसी किस्म का कोई चैलेंज ना। ये कोर्स मैं कई दफ़ा पढ़ा चुका हूँ, मेरे ख्याल में शायद मैंने इस यूनिवर्सिटी में इसको इतनी दफ़ा पढ़ाया कि मैं अपनी उंगलियों में गिन भी नहीं सकता कि मैंने कितनी दफ़ा पढ़ा, और हर दफ़ा इसके अंदर एक नया टच आ जाता है। ज़ाहिर है आप मेरे ऑडियंस हैं, तो ज़ाहिर है आपने अपना रंग भी तो जमाना है ना, अपना रंग भी तो दिखाना है, ठीक। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना वो चलेंगी। तो कोई सवाल आप लोगों के ज़हन में आ रहा हो तो ज़रा उससे भी ज़रा बातचीत करते हैं, कुछ और चीज़ें भी देखते हैं। कोई सवाल आपके ज़हन में उभर रहा हो? जी आंसर। सर
नेक्स्ट वीक से आप भी ऑन कैंपस आएंगे ना क्लासेस? जी, मैं इंशाल्लाह ताला मैंने तो यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट भी ये की है कि मेरे 3 सेक्शन में पढ़ा रहा हूँ आपको इस दफा। बीएस के इंग्लिश में 3 सेक्शंस है मेरे पास, तो मेरी रिक्वेस्ट है यूनिवर्सिटी से, और थी भी, और इंशाल्लाह ऐसा होगा कि मेरी क्लासेस जो है वो ऑन कैंपस हो। जी सर, हमें मेल भी आई है। तो मेल में क्या बात आई जी? सर ये कोर्स ऑन कैंपस होगा, 2 कोर्सेज ऑन कैंपस होंगे। तो जो आपका जो असाइनमेंट जी वो प्रैक्टिकल होंगी? देखिए, 3 असाइनमेंट्स आपकी थ्योरेटिकल होंगी, यानी क्वेश्चंस होंगे, उनके आपने आंसर लिख के मुझे दिखाने होंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसलिए मैंने आपको बताया कि मैंने ये तमाम चीज़ें, ये मेरी रिक्वेस्ट होगी कि मैं आपको एक अपना लिंक भेजूंगा, उस लिंक को आपने सब्सक्राइब कर लेना, तो आपको बकायदा ये आएगा, चीज़ें आएंगी कि कैसे आपने असाइनमेंट बनानी है और उसको आपने फॉलो करना। और मैं क्लासरूम की स्पेस में भी बताऊंगा कि आपने कैसे असाइनमेंट बनाए। तो 3 असाइनमेंट होंगी ऐसी जो कि थ्योरेटिकल होंगी, और उसके अलावा प्रैक्टिकल ये चीज़ होगी कि टॉक शोज होंगे, डिस्कशंस होंगी, ठीक, मैं डिस्कशन पैनल भी इस्टेब्लिश कर सकता हूँ। तो और प्रैक्टिकल से मुराद ये भी है कि हम ये भी स्टडी करेंगे हर ड्रामे को पढ़ते हुए कि ये ड्रामा जो है ये कैसे कंस्ट्रक्ट किया गया, कैसे बनाया गया। तो ये मेरी ख्वाहिश ये है कि आप जब क्रिटिक बने और आप टीवी ड्रामों को एवेलुएट करें, या फिल्म को करें, या थिएटर को करें, तो आपके अंदर ये सलाहियत होनी चाहिए कि ये जो चीज़ें ये कैसे लिखी गई हैं, कैसे चल रही हैं। ठीक है मीरा? ओके सर। जी प्लीज। सर आपका इंटरेस्ट ड्रामा में पहले से था, या जब आपने इसको पढ़ा तब आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ? नहीं, जब मैंने पढ़ा, एक्चुअली हमारे यहाँ ट्रेडिशन है, मेरा जो मास्टर्स है वो पंजाब यूनिवर्सिटी से है, पंजाब यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश लाहौर। तो हमारे यहाँ ये रवायत है कि पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर ये रवायत थी, और ये गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में भी है, और वहीं से ये मेरे अंदर शौक आया। वो ये आया कि हमें परफॉर्म करना पड़ा। तो जब ड्रामे हम तैयार करते थे, परफॉर्म करते थे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता, मैं उसको, मेरे अंदर एक शौक पैदा होना शुरू। मुझे तो लगा यार ये तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, और मुझे मुझे उसके अंदर मेरा एक इंटरेस्ट जागे लगा। तो जो मेरा इंटरेस्ट है वो पढ़ने से पैदा हुआ। मैं आपसे नहीं छुपाऊंगा कि ठीक है, इसमें कोई शक नहीं कि जब मैं अमेरिका गया था वहीं पर भी, क्योंकि ये एक ट्रेंड था, क्योंकि हमारे यहाँ लोग पता क्यों बोर हो जाते हैं चीज़ों से। हम इसलिए बोर हो जाते हैं कि हम ना रवायती तरीके से पढ़ते हैं, हम थक जाते हैं। हम कहते हैं यार यही टेक्स्ट है, चाहे फिक्शन पढ़ो, चाहे पोइट्री पढ़ो, चाहे ड्रामा पढ़ो, वो एक ही तरह से पढ़ रहे हैं। तो जब मैंने वहाँ पर मुझे मौका मिला इसके डिफरेंट एस्पेक्ट को एक्सप्लोर करने का, और फिर तो मेरे अंदर फिर शौक पैदा हो गया। फिर मेरा शौक हुआ। फिर अजोका ने मुझे बहुत कुछ दिया। अजोका एक थिएटर है पाकिस्तान का बड़ा, वो भी हम देखेंगे। मैंने उसके रिसेंटली एक डॉक्यूमेंट्री डेवलप की है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि जब आप इंशाल्लाह ताला ये हम आगे चलेंगे तो वो डॉक्यूमेंट्री भी मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने अभी डेवलप की है, जानबूझ के बनाई, आप लोगों के लिए बनाई, ताकि स्टूडेंट ऑफ जो ड्रामा है उनको पता चले कि ड्रामा की जो है वो फॉर्मेशन कैसे होती है। तो मुझे भी शौक हो गया, मुझे मजा आने लग गया। मैंने कहा यार ये बड़ी, और फिर इसके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी है ना। देखिए खुद को सामने लाना कोई आसान काम नहीं है। खुद को पेश करना जो है ना वो इतना आसान काम नहीं है, मुश्किल है। स्टेज जो है वो आसान दुनिया नहीं है, मुश्किल दुनिया। तो फिर वो एक खास और सबसे बड़ी बात ये है कि जो ड्रामे को देखते हुए जो रियलिटी का एहसास होता है ना, वो बड़ा एहसास था। उस एहसास ने मेरे अंदर शौक पैदा किया। तो ये मेरी कहानी। फिर उसके बाद सोचा फिर मैं फिर इसकी लाइटनिंग कैसे होती है, फिर इसके
स्टेजिंग कैसे होती है, फिर इसके कॉस्ट्यूम कैसे डेवलप होते हैं। अगर आप मेरा प्ले पढ़े नो एग्जिट, तो उसके अंदर मैंने बाकायदा प्रोडक्शन नोट्स लिखे। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा पॉपुलर प्ले है, और बल्कि मैं तो स्टूडेंट्स को कहता हूँ, मेरे तो साथ ही स्टूडेंट्स हैं। आप लोगों की वजह से मुझे अल्लाह ताला ने इतनी पजीराई दी है कि मैं लिखता हूँ। अब माशाल्लाह से उसका उर्दू में तर्जुमा भी हो गया लाली के नाम से, ठीक है। सो आई लर्न फ्रॉम देयर। तो सबा जो प्ले है वो नो एग्जिट है। आप अगर नेट पे जाएं तो अगर आप नो एग्जिट लिखें बाय डॉक्टर तैमूर कियानी, या सिर्फ मेरा नाम लिख दें डॉक्टर तैमूर कियानी, तो फिर आपको मेरे क्या होगा कि मेरे प्ले के बारे में भी आ जाएगा, मेरे वेबसाइट पर भी आ जाएगा, मेरे जो मैंने रिसर्च वर्क किया है वो भी आपके सामने, क्योंकि मेरा रिसर्च मेजॉरिटी ड्रामे या थिएटर पर है, तो वो भी आपको पढ़ने का मौका मिल सकता है, वो भी आप जान के देख सकते हैं। आप अगर अपने मोबाइल के ऊपर नेट ऑन करें और डॉक्टर तैमूर कियानी की सही स्पेलिंग लिखे, यानी TAIMUR KAYANI, तो अगर आप लिखें तो आपको जो है ना वो आप सर्च करें तो आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये मेरी अपनी स्टोरी की जो है वो यहाँ से स्टार्ट कि इसी तरह की मेरी क्लास, आप जैसी मेरी सिचुएशन, मैं क्लास अटेंड करता हूँ, मुझे मज़ा आता है, मैं कहता हूँ यार ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ठीक है, और बड़ी प्रैक्टिकल है, ठीक। और आप देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारे जो मतलब हम टीवी का एक चैनल का एक ड्रामा में, जैसे मैंने आपको बताया था, या सॉरी ARY का चैनल देख लें आप, उसके ड्रामे देख, 9 मिलियन व्यूअरशिप, 9 मिलियन व्यूअरशिप, 90 लाख लोगों ने उस ड्रामे को देखा। So look at the significance of a drama. ठीक, हमारे आज बजट पेश हो रहा है पाकिस्तान का, जो टाइटैनिक फिल्म है, टाइटैनिक फिल्म की जो रेवेन्यूज हैं वो हमारे बजट, पाकिस्तान के इस साल के बजट से ज्यादा है, वन फिल्म। So imagine the avenues, imagine the significance. तो ये तमाम चीजों ने मुझे मेरे अंदर इंटरेस्ट पैदा किया। जी आगे कोई सवाल आप लोग? जी मोहम्मद अरसलान से बात हो सकती है? मोहम्मद अरसलान से बात हो सकती है? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है अरसलान, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। तो अरसलान थोड़ा सा एक्साइटेड हुए आप ड्रामा और थिएटर की बातें सुनकर आज? जी सर, बहुत इंस्पायर हुआ हूँ मैं, तो मैं तो कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया था, तो आज आपकी बातें सुनकर मुझे वाकई कुछ फील हो रहा है कि इसको ना पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए। इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ मेरा साथ रहेगा, और जिसका मुझे आपसे आज बात करके बहुत अच्छा लगा है। आप लोगों ओवरऑल आपका ग्रुप मुझे नजर आ रहा है कि बड़ा कमिटेड से बच्चे हैं आप। और देखिए, आपने परेशान नहीं होना, मैंने आप लोगों के साथ मिल के काम, देखें एग्जैक्टिव की वजह ये मुख्तलिफ फील्ड है, ये फील्ड प्रैक्टिकल है, ठीक है, ये प्रैक्टिकल फील्ड है। और इसकी चीजें, क्योंकि आपने फिर क्या करना है कि आपने जब भी कोई ड्रामा देखना है तो क्या होना है, आपने तो फौरी तौर पे उससे एक्साइटेड हो जाना, आपने कहना वो ये चीज तो ऐसे है, इसमें ये गलती थी, ठीक है, इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें ये इशू है, ऑल ऑफ सडन बिकॉज यू नो द टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ इट, ठीक है। तो जब आपको टेक्निकल एस्पेक्ट पता चल जाए फिर तो देन यू बिकम टॉक ऑफ द टाउन, क्योंकि भाई आपसे लोग पूछे, अच्छा यार बताओ अरसलान यार ये ड्रामे में क्या प्रॉब्लम है, ये ड्रामा क्यों कामयाब है, इसकी स्टोरी लाइन में क्या खूबी थी। तो आपने बताना है कि देखें इसका प्लॉट बड़ा अच्छा है, फिर आपने प्लॉट रेजोल्यूशन मॉडल के बारे में डिस्कस करना है कि देखें पहले एक्सपोजिशन था, फिर राइजिंग एक्शन हुआ, फिर कॉन्फ्लिक्ट आया, ठीक है, और कॉन्फ्लिक्ट को आगे हम चले और हमने किया। तो मुझसे उमामा ने सवाल पूछा है कि सर हम क्या परफॉर्म करेंगे क्लास में? बिल्कुल, आपको ऑप्शन होगी, आप में से वो बच्चे जो परफॉर्म करना चाहते हैं परफॉर्म करेंगे, जो टॉक शो डेवलप करना चाहेंगे इसका
वो टॉक। और मैं ये भी तमाम चीजें आपको दिखाऊंगा क्योंकि स्टूडेंट्स ने काम किए। मैं 4 साल से पढ़ा रहा हूँ इसको। अमीरा ने कहा सर वेरी एक्साइटेड, सो आई जस्ट से टू अमीरा दैट आई एम आल्सो वेरी एक्साइटेड। ठीक है, कि क्योंकि बात ये है कि आपकी एक्साइटमेंट के साथ ही मेरी एक्साइटमेंट है। आप मेरा तो क्योंकि ये मेरी लाइफ है, ड्रामा इज पार्ट ऑफ माई लाइफ। आई लव टू बी एन एक्टर, आई लव टू बी ए डायरेक्टर, राइटर, you know, I spend majority of the time either teaching students or be a part of a theater. तो ये तमाम चीजें जो हैं, इस दफा मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात हूँ, इस दफा मैं मास कम्युनिकेशन को भी क्लास पढ़ा रहा हूँ, ये ड्रामा एंड थिएटर स्टडीज। और उससे पहले भी, आज से 1 साल पहले भी जो है ना, उन्होंने ऐसा किया था। अमीरा कोई बात करना चाहती हैं? अमीरा, फ्लोर आपके पास है। आई लव टू हियर फ्रॉम यू। सर मैं सोच रही थी कि मतलब जैसे हम ड्रामा देखते हैं तो कभी कभी दिल करता है कि हम भी ऐसी एक्सप्रेशन के साथ डायलॉग बोले। कभी कभी ऐसा बोरिंग हो जाता है नहीं जिंदगी में बोलना डायलॉग नॉर्मल, पर जब हम जैसे देखते हैं कि जिस तरह बैकग्राउंड म्यूजिक होता है, एक्सप्रेशन होता है, तो हम भी ऐसे ही बात कम्युनिकेट कर रियल लाइफ में भी। बिल्कुल सही है। देखिए मैं आपको अमीरा बताऊं, मैंने ना इसमें अपने ये YouTube चैनल में ना मैंने मोनोलॉग्स रखे। ठीक है, मोनोलॉग मैंने परफॉर्म की। ठीक, क्योंकि हम जब पढ़ते हैं, एक्टिंग पढ़ते हैं, तो एक्टिंग में ना में एक उसकी जो एक्टिंग की स्टार्ट है वो मोनोलॉग से होता है कि कैसे आपने एक यकतरफा डायलॉग्स हैं वो कैसे डेवलप करना। तो वो मैंने रखे हैं इसके अंदर यूट्यूब चैनल में। जब आप इसे सब्सक्राइब करेंगी, जिसमें इसमें जाएंगी चैनल के ऊपर देखेंगी, ठीक है, तो आप मोनोलॉग देखेंगे तो आपने देखिएगा कि कैसे चीजें डिलीवर हो। तो मैंने, क्योंकि मेरा 4 साल से मैं गिफ्ट यूनिवर्सिटी से मुंसलिक, और 4 सालों से मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि मुझे यूनिवर्सिटी ने जो मेजॉरिटी कोर्सेज दिए, चाहे अगरचे मैं फिक्शन भी पढ़ाता हूँ, लेकिन मुझे मेजॉरिटी जो कोर्सेज दिए वो ड्रामा एंड थिएटर से मुंसलिक है। सो आई लर्न सो मच फ्रॉम देयर। और ये मैं समझता हूँ कि ये एक प्रोसेस है। ये प्रोसेस है, जब ये आपके साथ काम होगा, इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, लैंग्वेज स्किल्स मिलेंगी, और आप लोगों को पता चलेगा ये चीज़ें कैसे जो है ना वो होती है। तो इंशाल्लाह ताला यही डेवलपमेंट फेज। तो इंशाल्लाह कोई और मेरा साथी जी। सर एक्टिंग करने के लिए ड्रामा को स्टडी करना जरूरी होता है क्या? जी बिल्कुल जरूरी, क्योंकि वजह इसकी ये कि यही तो हमारे ड्रामे क्यों फ्लॉप हो। देखिए आप ड्रामे के अंदर, फिल्म के अंदर अगर आप पढ़े लिखे नहीं है ना, ये जो हमने तबाही फेरी है थिएटर के अंदर, ये जो आमियाना गुफ्तगू है, ये जो वल्गैरिटी है, ये क्यों फैली? इसलिए फैली कि पढ़े लिखे लोग दूर हो गए। आप देखें अमेरिका का ड्रामा थिएटर फिल्म देखें, आप इंडिया का ड्रामा फिल्म थिएटर देखें, वो क्यों कामयाब, वो क्यों, उसके मीनिंग्स है, उसमें क्यों एंगेजमेंट ज्यादा है? इसलिए पढ़े लिखे लोगों पर। तो अगर आप पढ़े लिखे नहीं होंगे तो फिर आप यही होगा। ठीक है, अब हमारी एक उस्ताद थी नवीद शहजाद। नवीद शहजाद बहुत बड़ा नाम है एक्टिंग का। उनके बेटे का भी, फरहान, उनका भी इंतकाल हुआ, उनके बेटे का ब्रेन हेमरेज हो गया था उनको। बड़ा अच्छा म्यूजिशियन था पाकिस्तान का, वो बहुत बड़ा नाम। ठीक है, फिर उनके कजन है डॉक्टर तैमूर रहमान, ठीक है, अनदर बिग नेम इन पाकिस्तान, बिग नेम, बिग गन। तो वो जो लोग थे वो क्या थे? पढ़े लिखे थे। दरअसल बात ये है कि देखो, बात ये है कि जो पढ़ाई है वो आपको क्या करती है? आपको रिफ्लेक्ट करती है, रिफ्लेक्शन देती है, रोशनी है पढ़ाई। जैसे रोशन है पढ़ाई, आपके ज़हन को रोशन कर देती है, आपके दिल को रोशन कर देती है, उसमें सलाहियत है ये। हम तो कहते हैं कि लिटरेचर जो है, लिटरेचर क्यों पढ़ना जरूरी? और HEC ने अपनी नई पॉलिसी लाई है, उस पॉलिसी में कि लिटरेचर सबको पढ़ाया जाए, इंजीनियरिंग को पढ़ाया जाए,
मेडिकल स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाए। क्यों? ताकि वो इंसान बने यार। हमने देखा होगा अक्सर, हमने लोग देखे, हम हैरान हुए थे यार ये ऐसे क्यों करते, ये अजीब, यानी अपने शोबे में माहिर होने के बावजूद इंसानियत नहीं मिलती उनके पास, खुशबू नहीं आती उनसे। खुशबू इसलिए नहीं आती कि उन्होंने लिटरेचर पढ़ा ही नहीं, उसके मीनिंग समझने की कोशिश की नहीं। तो जब तक आप मीनिंग्स को नहीं समझेंगे तो क्या होगा, आप पीछे रह जाएंगे। जो लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं साथियों, आप सब जो हम सब जो स्टूडेंट्स, वो लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, हमसे खास किस्म की खुशबू आती है, लोग हमसे बात करना पसंद करते। जब आप बीएस कर देंगे तो लोग आपको ढूंढने वैसे ही बात करना पसंद, क्योंकि हम वो चीजें उनको बताते हैं जो दूसरे लोग नहीं बताते। सबा ने पूछा कि डॉक्टर कियानी का चैनल का नाम क्या, तो मेरे चैनल का नाम ही डॉक्टर जो है ना वो चैनल का नाम ही कियानीज वर्ल्ड, कियानीज वर्ल्ड। ये मैं आपको भी, जब आपका व्हाट्सएप ग्रुप फॉर्म हो जाता है तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा इंशाल्लाह। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि देखिए लाइफ में बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, मुश्किल है जिंदगी। तो ये जो मुश्किल जिंदगी है, इस जिंदगी के अंदर जो सोल्यूशन ओरिएंटेशन है इसकी, कि कैसे जिंदगी गुजारी जाए, कैसे इसको बसर की जाए, वो इसीलिए उसके लिए ड्रामा सर्च स्टडी करना। तहरीम का बड़ा अच्छा सवाल है, कहती है सर इंडिया के ड्रामे इतने तवील क्यों होते हैं? इसलिए तवील होते हैं कि वो ड्रामे जो है उसकी एक वो भी एक, हर ड्रामा जो लिखा जाता है वो ड्रामे की एक ऑडियंस होती है। इंडिया के अंदर जो ड्रामे की ऑडियंस है वो क्या है, वो फीमेल हैं जो कि घर पे रहती है बड़ी तादाद में, ठीक है, और वो पसंद करती हैं ऐसे ड्रामे जो जिससे वो रिलेट करके आगे चलती जाए, कहानी खत्म ही नहीं होती उनकी। ये भी मैं आपको इंशाल्लाह ताला मौका मिलेगा, मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने इसके भी लेक्चर रखे हैं आप लोगों के, ठीक है, तो जरूर होगा ऐसा। और सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम डायलॉग पढ़ते हैं तो हमारी लैंग्वेज स्किल्स भी इंप्रूव हो जाती है, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि ये बातें कैसे होती, क्योंकि जो कैरेक्टर्स हैं वो आम जुबान में बातें भी तो करते हैं, ठीक है जी। साथियों टाइम हो रहा है खात्मे का, दिल तो नहीं चाह रहा आप लोगों को साइन ऑफ करने का, बट आई मीन थैंक यू सो मच। तो मेरी तरफ से खुदाफिज, और मेरी तरफ से मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि काइंडली वो जो व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो फॉर्म कर लें, और मैं आपसे लिंक शेयर करूंगा। और एक ग्रीक थिएटर के ऊपर मेरी वीडियो है, वो वीडियो आपका देखना बड़ा जरूरी है पहले, क्योंकि ज़ाहिर है मैंने फिर टेक्स्ट को लेकर आना है, तो बड़ा जरूरी है कि मैं उसका बैकग्राउंड आपको समझाने में कामयाब हो सकूं। तो उसके लिए बड़ा जरूरी है कि आप वो वीडियोस देखिएगा जरूर। और अल्लाह हाफिज फ्रॉम माय साइड, एंड इंशाल्लाह सी यू वेरी सून। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज सर।